السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ کئی دن مزید گزر گئے، میں نے اپنی کتاب میں کچھ نہیں لکھا تھا اور پھر اس دن کروتی نے خود ہی کہا، اگر تم اجازت دو تو اپنے گھر ہو آؤں۔ ہاں، اس میں اجازت کی کیا بات ہے؟ اس کے بعد تم مجھے بتانا کہ میرے ہی دور کی کوئی اور کہانی تم دیکھنا پسند کرو گی۔ میرا مطلب ہے کہ اس وقت میرے ذہن میں تو کچھ نہیں، لیکن جس طرح ہم ایک اجنبی علاقے میں جا نکلے تھے اور وہاں ہمیں سمن گپتی مل گئی، اسی طرح یہاں اور بھی حسن و عشق کی کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ یہ تو انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ نہیں بابا نہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ بہت کچھ دیکھا میں نے سنسار میں، لیکن سمن گپتی کی کہانی نے میرے اوپر جو اثر ڈالا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ ایک بات بتاؤں تمہیں؟ ہاں بولو۔ گوتم بھنسالی ہم سے زیادہ دور نہیں ہوگا، وہ مجھ سے زیادہ تمہارا دشمن بن چکا ہے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ میں تمہیں ایک ایسا اپائے بتاتی ہوں جس سے تم بھی اسے پہچان لو گے، اور اگر کبھی وہ کسی بدلی ہوئی حیثیت سے تمہارے سامنے آیا تو اس سے اپنی حفاظت کر سکتے ہو۔ ٹھیک تو پھر سنو، میں تمہیں 1-2 دن کے بعد ایک جاپ بتاؤں گی جسے کر کے تم ایک چھوٹا سا سامان حاصل کر سکتے ہو، یعنی گوتم جس شکل میں بھی آئے تم اسے پہچان سکتے ہو۔ کروتی مجھ سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی اور میں نے زندہ صدیاں نکال لیں۔ میں بہت عرصے سے ان میں اپنی تحریر درج نہیں کر سکا تھا، اور پھر اس رات میں سمن گپتی کو لکھتا رہا۔ میں نے ٹیڑھے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے کا وہ نسخہ بھی اپنی کہانی میں تحریر کر دیا کہ اگر کبھی میری یہ کتاب چھپ جائے اور انسانوں کے ہاتھوں میں پہنچے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر لیں۔ کروتی سے کسی طرح کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور اس رات بھی میں اپنی کہانی میں مصروف تھا، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ بہت عرصہ یہاں رہ لیے، اب کروتی سے کہوں گا کہ کتاب کے راستے مجھے کسی اور دنیا میں لے جائے۔ باقی زندگی کے لمحات اس قدر دلچسپ ہوتے ہیں۔ رات کے 2 بجے تھے، میں زندہ صدیاں تحریر کر رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی اور میں بری طرح چونک پڑا۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میں گھر کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھول کر دیکھا، مجھے دوبارہ چونکنا پڑا۔ اول تو میرے گھر رات کے 2 بجے آنے والا کوئی تھا ہی نہیں، اور پھر بھی میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی پڑوسی ہو، کسی مشکل کا شکار ہو اور مدد مانگنے کے لیے میرے پاس آیا ہو۔ لیکن جس شخص کو میں نے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے دیکھا وہ گوتم بھنسالی تھا، مکروہ شکل کا پورا، اور وہ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا، اور پھر اس کی مکروہ سی آواز ابھری، مجھے اندر آنے دو۔ میں نے اسے اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا، خود دروازہ بند کرنے کے لیے رکا، لیکن وہ سیدھا آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے خود ہی ڈرائنگ روم کی لائٹ آن کی، اور اس دوران میں اس کی آمد کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس شخص سے مجھے بدستور خطرہ تھا، لیکن اب میں اتنا بزدل بھی نہیں، خاص طور سے مہابھارت کے دور میں اور اس کے بعد یونان میں یولیسس کی حیثیت سے میں نے جو عمل سر انجام دیا تھا اس نے تھوڑا سا نڈر کر دیا، اور میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر تیکھی نگاہوں سے گوتم بھنسالی کو دیکھا اور کسی قدر ترش لہجے میں بولا، آ گئے ہو تو میں نے تمہیں بلا لیا ہے۔ جس دور سے تم گزر رہے ہو اس کی تہذیب ذرا مختلف ہے۔ اول تو رات کے 2 بجے ایسے کوئی کسی کے گھر میں نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو میزبان کی اجازت کا انتظار کرتا ہے، اور تم نے اب تک جو کچھ کیا ہے مجھے پسند نہیں۔ بیٹھو۔ وہ ایک صوفے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس کی آواز ابھری، میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، تمہارا مہمان نہیں ہوں، بلکہ تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں۔ کرو، میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور خود اس صوفے کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا جس سے وہ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ گوتم کی گرائی ہوئی آواز ابھری، تم اس کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں مصیبت میں پھنسا دوں گا، کیا سمجھے؟ ٹھیک، اور کب تک پھنساؤ گے؟ کیا آج، ابھی اور اسی وقت؟ میں نے کہا، اور اس کا چہرہ مزید بگڑ گیا۔ تم شاید میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو، اور اس وقت بھی اگر میں چاہوں تو تمہیں کوئلے میں تبدیل کر دوں۔
तुम्हारे पूरे बदन से आग उबल पड़ेगी इस तरह। और उसने एक डेकोरेशन पीस की जानब उंगली उठाई और उसकी उंगली से नीले रंग की एक शुआ खारिज हुई और मेरा इंतहाई कीमती डेकोरेशन पीस सुलगने लगा और एक लम्हे के लिए मेरा मुंह गुस्से से खुला, लेकिन फिर मैंने अपने आप पर काबू पा लिया। डेकोरेशन पीस बहुत खूबसूरत था और किसी ने गिफ्ट किया था और उसके जलकर राख हो जाने की वजह से मुझे दिली अफसोस हुआ और मैंने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, ज़माना कदीम के शोबदागर मेरे दौर के लोग भी ऐसे शोबदे दिखा सकते हैं। पिस्तौल की एक गोली तेरे सीने में सुराख कर सकती है। बेशक तूने आबे हयात पिया है और वो गोली तुझे मौत नहीं दे सकती, लेकिन तेरे बदन के ज़ख्म ज़रूर तुझे तकलीफ़ देंगे और उनके भरने में वक़्त लगेगा। तुम ये भी ना कर सकोगे मेरे नौजवान अदीब, मेरे पास उसका भी हल मौजूद है, लेकिन नीले रंग की ये शुआ तुम्हें उसी तरह खाकतर कर देगी जैसे ये। उसने डेकोरेशन पीस की तरफ इशारा किया। हूँ तो फिर इससे ग्रेज़ क्यों कर रहा है जबकि बकौल तेरे मुझसे दुश्मनी है। कुरोती के लिए कि अगर मैंने तुझे हलाक कर दिया तो वो पेश गोई गलत हो जाएगी, जिसके लिए मुझे ना जाने कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। पेश गोई, हाँ, मोहब्बत कभी न कभी रंग ले आती है और मैं उसे बहुत चाहता हूँ और मैं उसे किसी कर्ब का शिकार नहीं देखना चाहता। मैंने अगर तुझे हलाक कर दिया तो वो मुझसे बहुत मुस्तनफ़र हो जाएगी। पेशगोई करने वाले ने मुझे यही बताया था कि इस हद तक ना पहुँचाना और उसके सीने में नफ़रत का दरख्त उगाए और वो जब भी तुम पर निगाह डाले नफ़रत की निगाह डाले। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत बेदार होगी और तुम्हें अपना लेगी। बस मैं कोई ऐसा अमल नहीं करना जिससे नफ़रत का वो दरख्त उग आए और मेरे रास्ते ख़त्म हो जाएं। लेकिन तू देख अदीब कि मैं कितना सब्र वाला हूँ, कितना इंतज़ार कर रहा हूँ और कब तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिर तू मुझे कौन सी मुसीबत में फंसा देगा गौतम भंसाली। ये राज तू मुझ तक ही रहने दे। बस इतना समझ ले कि अगर मैं सिर्फ़ तेरे ख़िलाफ़ कुछ करने पर आ जाऊँ तो तू अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाएगा और तुझे सिर्फ़ मौत की आगोश में पनाह मिलेगी और मैं मौत खुद नहीं दूँगा, तुझे वो तेरी तलब होगी और मेरा इंतकाम। तो ठीक है गौतम भंसाली, मैं भी ज़िंदगी के अनोखे तजर्बे कर रहा हूँ और वो तजर्बे मैं जारी रखूँगा। वो मुझे घूरने लगा और फिर बोला, तेरी मर्ज़ी है, तैयार रहना, मुझे तेरी मौत दरकार है, लेकिन वह मौत जो खुद तुझे तेरे अपने हाथों आए। मैं करोती के सामने सुरखरू रहना चलता हूँ। वो वापसी के लिए मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया और फिर बड़े दरवाजे से भी बाहर निकल गया। मैं उसके बारे में सोचता रहा था और मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा था। करोती से मेरा जो राब्ता हो गया था और जो रिश्ता मेरे और उसके दरमियान कायम हो गया था वो इतना हल्का नहीं था कि उसे मौत के खौफ से फरामोश कर दिया जाता। और वैसे भी मैं एक नडर इंसान हूँ, मेरे बहुत से अफकार व ख्यालात हैं मौत के बारे में। मैं भी बहरहाल मैंने सोचा कि कोई बच सका है आज तक, लेकिन ये आबे हयात पता नहीं इसका इख्तिताम क्या होता। और मैंने बहुत सी कहानियों में आबे हयात का जिक्र किया है, लेकिन सिर्फ़ ख्याली हद तक। हतमी तौर पर कभी मैंने नहीं कहा कि आबे हयात का वजूद है। अगर वजूद है भी तो क्या कोई आम इंसान चश्मा हैवान से आबे हयात हासिल कर सकता है? खैर, मैं इस पर कोई अपनी राय नहीं दे सकता, लेकिन आम लोगों की वही बात हो जाती है कि वह सिर्फ़ कहानी की हद तक है या फिर कहानी से आगे भी कुछ। करोती और गौतम भंसाली इस बात का दावा करते हैं कि आबे हयात का वजूद है और वह बकौल उनके ये अमृत जल पी चुके हैं। करोती से अपनी इस इमारत में ना रहा गया और वह दूसरी सुबह ही मेरे पास पहुंच गई और उसने मेरे बाजू से रुखसार लगाते हुए कहा, नहीं रह सकती अब मैं तुम्हारे बिना ज़ीशान अली, नहीं रह सकती मैं। अब पता नहीं क्या होगा, कभी कभी तो मेरा दिल डूबने लगता है। मैं जानती हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे और मैं फिर वीरान हो जाऊँगी। फिर मेरे दिल में ये ख्याल भी आता है कि अगर मैं अमृत जल ना पी चुकी होती तो अपने प्रेमी के साथ समय बिताकर भी राख बन चुकी होती या धरती की गहराई में जा चुकी होती। पता नहीं ये सब कुछ क्या है, मनुष्य क्या क्या सोचता है, कभी सही कभी गलत। नाश्ते के दौरान में उसने कहा कि रात गौतम भंसाली मेरे पास आया था और वो उछल पड़ी। हाँ, वो मुझे धमकियाँ देकर गया है और तुमने वो डेकोरेशन पीस नहीं देखा जो बड़ा खूबसूरत था लेकिन राख बन गया। और मैंने उसे डेकोरेशन पीस की दुर्गत दिखाई और उसके चेहरे पर गुस्से के तासरात फैल गए और थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली,
वो कमीना इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है। जहाँ तक बात रही तुम्हारी तो उसकी मजाल नहीं कि तुम्हें नुकसान पहुँचा सके। फिर भी मैंने फ़ैसला किया है कि तुम्हें ऐसे जा बताऊंगी कि तुम उससे ही नहीं बल्कि अपने हर दुश्मन से महफूज रहोगे। और मुझे एक बात बताओ कुरैती। हाँ पूछो। वो तुम तक कभी नहीं पहुंच सका। मेरा मतलब है कि तुम्हारी कुर्बत नहीं हासिल हुई उसे, कभी नहीं, और मुझे उसकी शक्ल से नफ़रत है। लेकिन ल्यूस्की की हैसियत से उसने तुम पर काबू पा लिया था। मैं वहाँ यूलिसस की हैसियत से मौजूद था और मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसने तुम्हारे बदन पर खराशें डाल दी थी। वो हंस पड़ी और फिर बोली, अच्छा एक बात बताओ। पूछो। तुम यूलिसस की हैसियत से वहाँ मौजूद थे? हाँ। तो तुम यूलिसस थे? नहीं। तो मैं भी वो नहीं थी जो तुम्हें नज़र आ रही थी। ये तारीख के दो किरदार थे। मैं शायद पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि माजी जो गुजर चुका होता है और उसकी तरतीब जिस तरह होती है उसमें नए किरदारों की गुंजाइश नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई दीदावर की हैसियत से तारीख में दाखिल हो भी जाए तो वह सिर्फ़ दीदावर होता है और नहीं समझ पाता जो तारीख का असल होता है। हम जब तारीख में दाखिल होते हैं तो अपनी जगह तलाश करते हैं कि हम कहाँ समा सकेंगे, लेकिन हम पर जो उस दौरान बीतती है वो हम पर नहीं बीतती, बल्कि तारीख के वो किरदार हमारी शक्ल में अपनी कहानी बयान करते हैं। लिखना अपनी किताब ज़िंदा सदियाँ में ये बात के जीवन का ऐसा मोड़ भी होता है जब हम खुद अपनी ज़ात को नहीं समझ पाते। मैं वाकई इस फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू से उलझ रहा था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तो वो तुम नहीं थी। नहीं, वो अश्तारिया ही थी और मैंने सिर्फ उसका रूप धारा था। उसका मेरे जीवन से कोई तल्लुक़ नहीं। ठीक, और मैं और तुमने भी यूलिसस का रूप धारा था। मैंने तो कुछ नहीं किया था इस सिलसिले में जबकि तुमने रूप धारा हुआ होगा। मेरी ये किताब जिससे जब तुम उसके हरूफ पर जाते और तारीख की गहराई में उतर जाते हो तो फिर तुम्हारा एक किरदार मुंतखब हो जाता है। ये मेरा अमल है, ये मेरा ज्ञान है। एक बार तुम मेरे साथ बड़ा दिलचस्प मसला हुआ। तुम्हें यूनान से दिलचस्पी है ना, और मैं यूनान के एक बड़े ही अहम किरदार के साथ जिस हैसियत से रह चुकी हूँ, सुनोगे तो दंग रह जाओगे। मुझे बड़ी दिलचस्पी महसूस हुई। मैंने कहा, मैं सुनना चाहता हूँ और दंग रह जाना चाहता हूँ। वो हंस पड़ी और फिर बोली, तो क्यों ना इस दौर में और उसके आखिरी तक सफ़र किया जाए। खैर, तो मैं तुम्हें बता रही थी कि एक बार मेरे साथ एक दिलचस्प वाक़या पेश आया जो तवील वाक़या था। मुझे पता चला कि एक पुरखार इलाके में एक ऐसा उस्ताद आज़म मौजूद है जो बड़े अनोखे ज्ञान जानता है, जिसका नाम एलिगोस था। एलिगोस से मैंने एक इल्म सीखा। बड़ा अनोखा इल्म था और बड़ी मुश्किल से मैंने एलिगोस को इस बात के लिए तैयार किया था कि वो मुझे इल्म की इस मंजिल तक ले जाए। उसके लिए मुझे उस अनोखे किरदार में इस हद तक पहुंचना पड़ा था और उसका वो ज्ञान और इल्म उसे ये नहीं बता सकता था कि असल में मैं कौन हूँ। वो मुझे बड़े प्यार से अपना वो इल्म सिखाता रहा और जब मैं उसका मुकम्मल इल्म सीख लिया तो फिर मैंने उससे जुदा हो जाना मुनासिब समझा। और मुझे माफ़ करना ज़िशान अली, एक काम मैंने किया है कि अगर कोई ऐसा इल्म मेरे हाथ आ गया जिसमें मैंने सोचा कि मेरे अलावा कोई दूसरा उससे वाकिफ़ ना हो, तो मैंने इल्म सिखाने वाले को या तो ख़त्म कर दिया या इस तरह साकत कर दिया कि फिर वो जुम्बश तक ना कर सके। तो यही हुआ। मैंने एलिगोस की वो कुव्वत सलब कर ली और एलिगोस को जब इस बात का इल्म हुआ तो वह गज़बनाक हो गया और वो मेरा बदतरीन दुश्मन बन गया। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरे अंदर बहुत सी खामियाँ हैं। मैं ज़ख्मी हो सकती हूँ, दुख दर्द उठा सकती हूँ, बस ये कि मर नहीं सकती। अगर मेरे बदन पर कोड़ फूट आए, अगर मेरे अज़ाब मफलूज हो जाएं, तो भी मैं ज़िंदा रहूँगी। और वो ज़िंदगी कितनी तकलीफ़दा हो सकती है तुम्हें इसका इल्म नहीं। मैं बता रही थी कि वो मेरा दुश्मन बन गया और फिर मेरे ही ज्ञान ने मुझे बताया कि वो मेरी ताक में है। यहाँ मुझसे एक छोटी सी गलती हुई। मैं अपनी ताकत के इल्ज़ाम में उसके सामने आ गई और उससे कहा कि वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। वो सख्त गज़बनाक था। उसने कहा कि वो मेरा इतना कुछ बिगाड़ सकता है कि मैं सदियों उसे नहीं बोल सकूँगी, और उसने उसका अमली मुज़ाहरा करके दिखाया। एक इंतहाई ताकतवर हाथी नुमा गैंडा था जिसका कदो-कामत देखने के काबिल था। उसने नमूने के तौर पर उस गैंडे पर वो इल्म आजमा कर मुझे दिखाया। गैंडा अपनी जगह साकत हो गया। वो सांस लेता था, बोल सकता था, लेकिन उसके बदन में जुम्बश नहीं होती थी। एलिगोस ने कहा, और वो मुझे भी एक जिंदा मुजस्मा बना सकता है। किसी भी जगह मैं साकत हो सकती हूँ और फिर मेरा जीवन का बाकी समय
उस पथराए हुए बदन के साथ गुजरेगा और मैं किसी तौर पर अपने आप को ठीक नहीं कर पाऊंगी। मैं खौफजदा हो गई। अगर वो ये कर लेता तो मेरे लिए और उससे भयानक सज़ा और कोई ना होती। मेरे पास ज्ञान होते, ताकत होती, सब कुछ होता, लेकिन मुझे पत्थर के एक मुजस्मे की तरह एक जगह साकत रहना पड़ता। तो मैंने वहाँ से फ़रार मुनासिब समझा और जो भी पहला ज़ाविया मुझे नज़र आया उस ज़ाविये में गुम हो गई। कोई जाना पहचाना रास्ता नहीं इख्तियार किया था मैंने, बस मुझे एली गौस के सामने से गायब होना था और वो ज़ावियों का इल्म नहीं जानता था, लेकिन अपने ज्ञान से उसने पता लगा लिया कि मैं किस सिमत गई हूँ और उसने उसी सिमत का सफ़र शुरू कर दिया। मैं सचमुच उससे डर गई थी और मैंने हवाओं में और फ़िज़ाओं में अपना ठिकाना बनाया, बल्कि एक अंधेरे गार का रुख किया और गार में जा छुपी। जिस वक्त मैं उस गार में दाखिल हुई दिन की रोशनी थी, लेकिन गार में अंदर से बेहानक तारीकी थी। एली गौस मेरा पीछा कर रहा था और वो मेरी खुशबू सूंघता फिर रहा था। मैं दर हकीकत डर गई, क्योंकि जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था उसने मुझे दीवाना कर दिया। मेरी सारी कोशिशें, सारी कुव्वतें उस जगह ख़त्म हो जाती जहां मैं एक ज़िंदा वजूद की हैसियत से मुजस्मे की शक्ल इख्तियार कर लेती। ज़रा सोचो ज़िशान अली, मुझे मौत नहीं और मैं सदा जीती रहूँगी, लेकिन किस अंदाज में? एली गौस मुझसे इंतकाम लेने में हक़ बजानब था, क्योंकि मैंने उससे उसकी कुव्वतें छीन ली थीं। गार में काफ़ी समय गुजार लिया, फिर रात हो गई और मैं एक पथरीली ज़मीन पर बैठकर एक जगह लेटकर सोचने लगी कि एली गौस से पीछा कैसे छुड़ाया जा सके। और फिर ना जाने रात का कौन सा समय था, मुझे नींद आ गई, गहरी नींद के दफ़तन ही मेरी आँख खुल गई। कुछ ऐसी आहटें उभरी थी कि मैं दहशत से सिकुड़ गई। मेरा ख्याल था कि एली गौस आखिरकार मेरा पता पाने में कामयाब हो गया और मैंने फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखा। जो गार दिन की रोशनी में तारीकी में डूबा हुआ था, अब वहाँ मदम मदम रोशनी होती जा रही थी और उस रोशनी में मैंने कुछ बूढ़े आदमियों को देखा। वो गर्दन से लेकर पैरों तक लिबादों में लेटे हुए थे और उनके चेहरे रोशनी में नुमायाँ थे। मैंने जो कुछ देखा वह मेरे लिए बड़ा सनसीखेज था। जानते हो उनमें से कुछ शनासा चेहरे कौन से थे? मैं चौंका। यूनान में काफ़ी समय बिता चुकी थी और यूनान की तारीख से मुझे पूरी तरह शनासाई हासिल थी, इसलिए मैंने उन्हें पहचान लिया। उनमें से एक अफलातून था और दूसरा बतलमूस, तीसरा बकरात, चौथा सकरात और इसके अलावा कुछ ऐसे अजनबी जिन्हें मैं नहीं जानती थी, लेकिन उनके अंदाज से पता चल रहा था कि यूनान की कदीम तारीख के कुछ अहम किरदार होंगे और वह सब मेरी ही जन्म नगरां थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर वो मेरे करीब पहुंच गए। गालबन वो बतलमूस था जिसने मुझसे उठने के लिए कहा। सब के चेहरों पर फिक्रमंदी के आसार थे। बतलमूस बोला, सुनो, हम तुम्हें जानते हैं कि तुम कुरैती हो क्या? हमने गलत कहा और मैंने खुद को संभाला और आहिस्ता से बोला, नहीं। तब सकरात आगे बढ़ा और उसने कहा, कुरैती, तुम कोई नौजवान लड़की नहीं हो, अच्छा बुरा सब समझती हो। एली गौस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वो चीख चीख कर तुम्हें पुकारता फिर रहा है और वो हवाओं से मदद मांग रहा है। वो फ़िज़ाओं से बातें कर रहा है और कहता है कि वो तुम्हारी निशानदही करें। वो इस गार में आ सकता है, वो तुम्हें पा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें एली गौस से बचने की दावत देता हूँ। तुम्हें हमारा काम करना होगा और तुम उससे बच सकती हो। मैं जानती थी कि ये कदीम रूहें हैं जो यहाँ मेरे गिर्द जमा हो गई हैं। मैंने खुद को संभाला और उनसे सवाल किया कि वो कौन सा ऐसा अमल है जिसके तहत एली गौस से अपना जीवन बचा सकती हूँ। तब सकरात कहने लगा, मेरा शागिर्द सिकंदर इस वक्त एक अजीब मुश्किल में गिरफ्तार है। उसकी महबूब हस्ती असफाकिया जो उसकी बीवी है गुम हो गई है। सिकंदर कहीं मसरूफ़ है, लेकिन उस तक ये इतला पहुंच चुकी है कि असनाकिया लापता है और उसने अपने ख़ास आदमियों का एक दस्ता असनाकिया की तलाश पर ममूर किया है और वो उसे जगह जगह तलाश करता फिर रहा है। सिकंदर जो कुछ करता है वो तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है, लेकिन अगर असनाकिया उसे ना मिली तो ख्याल है कि वो दिल बर्दाश्ता हो जाएगा और उसके बाद तारीख न जाने कौन सा रुख इख्तियार कर ले। लेकिन कुरैती असनाकिया ज़िंदा नहीं है और वो एक हादसे का शिकार होकर मर चुकी है और उसकी लाश इसी गार में हमारे पास महफूज है। हम गौर कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए और बहुत सी बातों के बारे में हमें इल्म है कि वो किस हैसियत की हामिल होती हैं, क्योंकि हम इस दुनिया के दौर से निकल चुके हैं और एक नई दुनिया के मुसाफिर हैं। हमें मालूम है कुरैती कि तेरे पास पोशीदा अलूम हैं और तू आबे हयात पी चुकी है, यानी तू ज़िंदा रहने वालों में से है।
जो इल्म तेरे पास हैं उनमें से एक इल्म ये भी है कि वह तू मुर्दा अजसा में दाखिल होकर उनकी हैसियत इख्तियार कर सकती है। तू बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर इधर निकल आई है, लेकिन ये गिलास पेशगोई कर रहा है कि बहुत जल्द असनाकिया की ज़िंदगी के लिए एक हाल निकलने वाला है। ये सितारा शिनास है और यूनान की तारीख में गिलास के नाम एक सितारे की हैसियत ही रखता है। यूनानियों का कहना है कि गिलास की रातें कहकशा में सितारों के साथ गुजरती हैं और वो उनसे बराह रास्त मुखातब होता है। तो गिलास सितारा शिनास ने यह बताया कि एक औरत आने वाली है जो इन मुश्किलात का हल बनेगी, और अगर तू एली गौस से निजात चाहती है और ये चाहती है कि एली गौस तेरा पता ना पा सके और तुझसे अपना इंतकाम न ले सके, तो तू असनाकिया के कालिब में चली जा और कि उसकी हैसियत से दो फ़ायदे हासिल कर। पहला ये कि एली गौस से महफूज रह जाएगी, दूसरा ये कि सिकंदर की ज़िंदगी का एक अहम बाब शुरू हो जाएगा और वो पूरे इत्मीनान से सब कुछ कर सकेगा जो तारीख़ का मनसब है। ज़िशान अली ज़िंदा इंसान के ज़हन में खौफ का अंसर बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे सांस लेने का। दर हकीकत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जिनमें से हर एक हिस्से का अलग अलग काम होता है और उसके बगैर इजसाम मुकम्मल नहीं होते। तो खौफ भी एक वजूद है जिसकी मिसाल ये है कि एक नवाजिदा बच्चे को जिसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम सिवाय उन दो चीज़ों के, यानी एक भूख और जिसमें वो रोता है, ये उसकी तलब है जो आंसू और आवाज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। दूसरा खौफ, तुम एक छोटे से बच्चे के करीब एक ज़ोर की आवाज़ पैदा करो तो वो उछल पड़ता है, यानी उसके ख़मीर में खौफ का जो अंसर है वो नौमलूदियत के साथ भी होता है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अली गौस के तासर से मुझे भी खौफ का एहसास हुआ और मैं एक पथरीला ज़िंदा मुजस्मा नहीं बनना चाहती थी। तो मैंने उन दुनिया से चले जाने वाले मुफक्करों की वो तजवीज़ कबूल कर ली और उन्होंने मुझे असनाकिया का वो जिस्म दिखाया जब वहीं उस गार में मौजूद था और अबदी नींद सो रहा था। क्या ही हसीन औरत थी, ऐसी दिलकश यूनानी नकूश की आंखें उन पर जम कर रह जाएं। और फिर जवां मर्द सिकंदर जिसकी कहानियाँ मेरे कानों तक पहुँच चुकी थी और मुझे ये सब कुछ बहुत दिलचस्प लगा और मैंने अपने ज्ञान से काम लेकर असनाकिया के काल में दाखिल होने का अमल शुरू कर दिया और कुछ लम्हों के बाद उसके रूप में उठ खड़ी हुई। पुरस्कार बूढ़े मुझे इस तरह उठकर देखकर खुश हो गए और एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे कि उन्होंने इस फाते आज़म सिकंदर को नई ज़िंदगी दे दी। इस वक्त मेरी सबसे पहली तलब भूख थी और जिसका मैंने उन लोगों से इजहार किया और आखिरकार तमाम अमूर से फरागत हासिल कर लेने के बाद तो मुझे एक ऐसी जगह ले आए जहाँ से सिकंदर के लोगों ने मुझे देख लिया और खुशियों में डूबकर मुझे अपने साथ लेकर चल पड़े। मैं एक दिल का शहर से दो चार थी और सोच रही थी कि आने वाला वक्त मेरे लिए कितनी दिलचस्पी का हामिल होगा। मैंने अपने अंदर असनाकिया की फितरत और उसके माजी का जायज़ा लिया और चूँकि अब मैं असनाकिया थी इसलिए उसके बारे में अब मैं बहुत सब कुछ जानती थी। असनाकिया को फ़ारस के तारीख अयाम में अपने वतन की मदद करने के लिए पैदा किया गया था और वो यानी बाद में बाख्तर के गवर्नर की पहली औलाद थी। मेरा यानी असनाकिया का बाब शाह फ़ारस की सल्तनत में सगूदिया का हुक्मरान था और उन दोनों फ़ारस की हुकूमत एशिया के एक तिहाई हिस्से में फैली हुई थी। मेरी माँ सीनी रामस एक आला ख़ानदान की बेटी थी जिसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा था और वो मेरे बाप की पहली बीवी थी। वाह किस दिलचस्प कहानी का आगाज़ हुआ। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं ज़िशान अली कि सदियों के सफ़र में एक कदीम रूह का सफ़र बहुत ही दिलकश और दिलचस्प था। मैं खुद भी तारीख़ की दीवानी थी इसलिए मुझे अब इस नए रूप से बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई। फ़ारस का कदीम और तारीख़ी शहर समरकंद चारों तरफ से सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ों में घिरा हुआ था और उसकी हुस्न पर जन्नत अराज़ी का गुमान होता था। उसी खूबसूरत शहर के एक पुरशिकवा महल में मेरे वालिदैन की रिहाइश थी और महल की दीवारें चिकनी और रंगीन ईंटों से तामीर की गई थी। उनके सुर्ख और नीले रंग के दरमियान बने हुए सुनहरी सतून और छत के रंग बिरंगे नक्शो निगार सनाई के नादर नमूना थे। शाह दारुश स्वयं के दौर हुकूमत के 8वें साल में चौथे माह की 6ठी तारीख को मैंने असनाकिया की हैसियत से उस दुनिया में आँख खोली थी। ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम में मैंने महल के उस अंदरूनी हिस्से में बसर किए जो हरम कहलाता है और वैसे मुझे अपने बाप को बहुत कम देखने का मौका मिलता था। मैं जब 5 वर्ष की थी तो एक दिन बड़े गुस्से में अंदर आया और उसने मेरी माँ से कहा कि उसने माबद से इजाज़त लेकर मुझे अपने जानशीन बनाने का फ़ैसला किया है
तब मेरी माँ ने हैरत ज़दा होकर कहा कि लड़की किस तरह जानशीन हो सकती है, लेकिन मेरे बाप ने माँ की बात रद्द कर दी और जवाब दिया कि वक़्त यही कहता है। एक दिलचस्प बात यह थी कि 4 बीवियों और कनीज़ों से मेरे बाप की 24 औलादें हुईं, लेकिन सब की सब लड़कियां। वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते थे और फिर बड़े माबद ने, जो उस दौर के मजहबी रहनुमा थे, उसकी इजाज़त दे दी। इसलिए मेरे बाप ने अपने फ़ैसले का ऐलान करके कहा कि खुदाए हरमज़ को यही मंजूर है तो असनाकिया ही मेरी जानशीन बनेगी। उन्होंने कहा कि अगर ये लड़का होती तो 5 बरस की उम्र में माबद के पास तरबियत लेके लिए जा चुकी होती। अब ये मेरी जानशीन बन चुकी है, इसलिए आइंदा ज़िंदगी से लड़के की तरह बसर करना होगी। ज़िशान अली, उसने यानी मेरे बाप ने, यानी असनाकिया के बाप ने मुझे उठाकर अपने घुटने पर बिठा लिया और फिर यह मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, असनाकिया, आज से तो मेरी जानशीन है। मेरी सारी दौलत, मलकियत, महल और ख़जाने आज से तेरे हैं, लेकिन तुझे उनकी हिफाजत के लिए बहुत कुछ सीखना है। मैं चाहता हूँ कि तू बेटे की तरह मेरा नाम रोशन करे। ज़िशान अली, ज़रा सोचो, क्या ही दिलकश और दिलचस्प मंजर था जब मैं अपना बचपन देख रही थी और अपने बाप के साथ उसके ज़ानों पर बैठी थी और वो मुझे मुस्तकबिल के लिए नसीहतें कर रहा था। मेरा बाप बहुत खुश था कि उसने मुझे अपना जानशीन मुकर्रर किया, लेकिन माँ मेरी जुदाई पर आंसू बहा रही थी। एक तरह से मैं उससे दूर हो रही थी। मुझे महल में बनी हुई इबादत गाह में, बड़े माबद के रिहाइश गाह में पहुँचा दिया गया, जहाँ मेरी रिहाइश के लिए एक छोटा सा कमरा था, जिसमें मेरा बिस्तर, एक छोटी सी मेज़, कपड़े रखने की चोब, ज़रूरत के सामान और कनीज़ के सोने के लिए लकड़ी का एक तख्ता था। मेरी कनीज़ असनारा बड़ी बदसूरत थी। इबादत गाह में खूबसूरत कनीज़ें नहीं रखी जाती ताकि पुजारियों के जज्बात काबू में रहें, और मेरे उस्ताद का नाम बारूस था। मेरी तालीम ज़रतश्त मज़हब के बुनियादी असूलों से हुई, जिनके मुताबिक हज़रत ज़रतश्त खुदा के पैगंबर थे और उनका ज़हूर 1000 साल कबल हुआ था। ज़रतश्त दीन की मुक़द्दस किताब औस्ता थी और इसकी 21वीं जल्द सोने से लिखी हुई थी। ये मुक़द्दस किताबें शहर की पुलिस के शाही ख़जाने में महफूज थीं। मेरे उस्ताद ने अपने दर्स में मज़हब के जो असूल बताए, उनकी बुनियादी नेक गुफ्तार, नेक करदार और नेकियों के तमाम असूलों पर रखी गई थी। मजहबी रहनुमाओं का एक अलहदा कबीला था जिसे मग कहते हैं। मेरे मबद में मग के दर्जे पर फायज थे, और फिर यूँ हुआ कि मेरी तालीम की इब्तदा के कुछ ही अरसे के बाद मेरे बाप को अपना जानशीन मिल गया, यानी वो बेटा जो मेरी माँ के पेट से पैदा हुआ और जिसका नाम रावश रखा गया। मैं अपने भाई से असद करने लगी, लेकिन मेरे उस्ताद ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि वालदैन की मोहब्बत का समुंदर बहुत गहरा होता है, तू फिक्र ना कर, खुदाए बुजुर्गो बर्तर ने तुझे पहले मुंतखब किया है, अपने बाप की जानशीन तू ही रहेगी। और मैंने मुक़द्दस आतिश कदे के सामने सूरज तुलू होने का मंजर पहली बार देखा, क्योंकि ज़रतश्त मज़हब की इबादत उस वक़्त की जाती थी और इबादत के मौका पर मजहबी कलमात पढ़े जाते थे। फिर सूरज की पहली किरण नमूदार होते ही तेज़दार खंजर कुर्बानी के बैल की शहरग काट देता था। पहली मर्तबा मैं इस हौलनाक मंजर से खौफज़दा होकर रोने लगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुकूनी नज़ारे की आदी हो गई। ज़िशान अली, मैं पूरी दिलचस्पी से अपने फ़रैज़ अंजाम दे रही थी। अलबत्ता मुझे 14वीं सालगिरह के बाद एक और उस्ताद के सुपुर्द कर दिया गया। माँ ने मुझे बताया कि मेरी उम्र 14 बरस हो चुकी है, चुनाचा मुझे निस्वानी तालीम के लिए हरम में वापस तलब किया गया है। मैंने सख्त एहतजाज किया, लेकिन हिदायत थी कि मुझे हरम में वापस जाना है। इतने अरसे तक लड़के की हैसियत से ज़िंदगी बसर करने के बाद मुझे हरम का माहौल बेहद नागवार महसूस हुआ। उदो अंबर की तेज़ खुशबू, ख्वाजा सराओं की बेसुरी आवाज़ें और बच्चों के मुसलसल चीखों पुकार से मेरे ना आशना कान ना वाकिफ़ हो चुके थे, लेकिन अब यह सब कुछ मुझे सुनाई दे रहा था और मुझे बेहद नागवार था। मेरी माँ की महल सरा में शाहाना सजावट थी। दीवारों और दरों पर सुनहरे तारों से बने पर्दे, छतों पर खूबसूरत झाड़, फानूस, मखमले, नरमो गुदाज गद्दे, खाने के लिए आला तरीन ग़िज़ाएँ और कनीज़ों और ख्वाजा सराओं की खुशामदाना खिदमत गुजारियाँ, ये सब मेरे सामने लाया जा रहा था। हाल में उन्हें देखना मेरे लिए एक नापसंदीदा अमल था।
जबकि माजी में न जाने मैं किन किन लम्हात से गुजर चुकी थी। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अफनाकिया, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तेरे लिए। क्या? मैंने सवाल किया। तूने सिकंदर का नाम सुना है? मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा, ना जाने वो क्या कहना चाहती है। ताहम मैंने उससे कहा, हाँ माँ, और मुझे ये नाम बताया गया है वो मकदूनिया के शाह फिलिप का बेटा है। यूनान को फतह करने के बाद उसने एशिया का रुख किया है और उसने हमारे शाह फारस की फ़ौजों को भी जंग में हैरत अंगेज़ तौर पर शिकस्त दे दी है। लेकिन आप किस खुशखबरी का जिक्र कर रही हैं? शाह फारस ने ऐलान किया है कि अब वो सिकंदर को शिकस्त देने के लिए खुद फ़ौज लेकर जाएंगे और उसके लिए पूरे मुल्क से अफवाज को जमा किया जा रहा है। आज तुम्हारे बाप को भी वो फरमान ला कर दिया गया है जिसके मुताबिक शाह ने बाबल में तमाम सरदारों को तलब किया है ताकि सिकंदर को शिकस्त के लिए जंगी तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा सके। इसलिए हम सब बाबुल जा रहे हैं। मैंने पूछा कि ना जाने क्यों मेरे दिल को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ था। बाबल, हम वाकई बाबुल जा रहे हैं? हाँ मेरी बेटी, क्या तूने वाकई बाबल के बारे में तफसील सुनी है? हाँ मैं जानती हूँ, बाबल दुनिया के हसीन तरीन शहरों में शुमार होता है और फारस की आखिरी सरहदों पर वाक़या है। लेकिन माँ, हम कब तक वहाँ चलेंगे?